Hope everyone is doing well. This is Irfan. I'm here with a podcast, a conversation, a motivational conversation with pharmacists who have passed the exam and who has complete their first phase of their CAPS journey by passing the CAPS, and now they're working in different part of Australia. So we have a good pharmacist, good friend, Burhan. And Burhan, are you on camera? Are you available? Is your mic is on because we cannot hear you at the moment? Assalamu alaikum. How are you? Hello, how are you? Yes, I'm very well. Thank you. Thank you, Burhan. How's your day going tell us about uh, your where are you? Please introduce yourself, and then we can carry on some question and answer, which can inspire many other people who are actually watching and listening, or maybe later they will be watching it. So you need to be a motivational person for others because you have done so many things in your CAPS journey, and you are working in community pharmacy. So please, your call, your mic, whatever you need to tell us, please tell us. Thank you very much for joining. Yeah, yeah. My name is Burhan Said. Currently, I am working in Kadina, South Australia. Right. Uh, that was a big journey that I came here. It is a wonderful place, wonderful people, wonderful work environment. So, starting from last month, I came here. So before this, I passed my CAPS exam in 2021. Then I passed my PT exam, then app registration. So it's a couple of time that it takes. So after that, I came here in Kadina. Of course, with the help of Allah Almighty and you, that you give me some chances that for here for 407 visa. It's a wonderful journey, and also my voice is a little bit because of Ramadan. That's Sorry all for right. That's that. all right. I know that we are fasting, and Yeah, and this is the great month for Ramadan for making ourselves prayer. And luckily, we have some public holidays just falling there as well. yeah. So it's a good journey that I recommend all of them that who is listening today that you have to come here. You will feel a different environment, totally like friendly environment. That's right. Everyone is wonderful people here. They are very helping. So everyone should appear in the CAPS exam and come to in Australia. I will recommend all of them that who is listening me that they have to come to Australia. That's good. And Burhan, tell us. I know that we have a lot of audience following this podcast from last 3 days. We have interviewed some pharmacists who completed the CABs, and we have interviewed some who are already in Australia. Uh, Mhm. what remarkable thing that you see in your journey, which you need to tell, which is could be different from other person. If you have something which you can express. And tell and which can make them more vigilant in their journey. What do you think? What is the start of the CAPS preparation, or finding the job, or finding accommodation in Australia? Anything which you want to say? The most yeah, in that journey, the people found very difficult regarding the finding of job. So in my case, that you helped me a lot. Thank you. Uh, Within one message, that within one call, that you helped me a lot. That's very good. So that's my journey. That it's Make the very difference. wonderful time and wonderful on that time within just one message that you send me that you have to contact this person, and also you helped me in that time that what type of question they are asking and what type of interview Okay. they are mostly they are asked. So on that time, without asking anything, you helped me a lot for that interview. ओके, So that's बुरहान, my part. कुछ बातें जो हैं मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप हमें उर्दू में भी करें. हम इंग्लिश तो बात करते हैं, इंग्लिश इज अ मीडियम, बट पीपल हु आर लिसनिंग दे अंडरस्टैंड और मे बी कनेक्ट वेरी कंफर्टेबली. अगर आप सब चीजें थोड़ी सी उर्दू में बताएं ना, तो उनको ज्यादा महसूस होगा कि आप ये जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कितनी डेप्थ है. ये जो आपने बात की है कि आप आपके साथ तो बहुत सारी चीजें बड़ी अमेजिंग हुई हैं. जब मैंने आपसे जब पूछा था कि आपको टिम रॉस लेने आए एयरपोर्ट पे, तो मैंने कहा वाह क्या बात है भाई.
आपको स्पेशल हाँ जी, प्रोटोकॉल मिली है? वो भी स्पेशल लेने आए थे और वेट कर रहे थे, फ्लाइट थोड़ी सी लेट थी। अरे वो वेट कर, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपका मैनेजर खुद लेने आए, जी जी और वो भी कदीना से, तो कि तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है सबर्ब से एडलेट का। लेकिन वो आए, उन्होंने, अच्छा मेरे केस में थोड़ा सा ये भी था कि मेरी फ्लाइट पहले कैंसिल हुई थी ड्यू टू सम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई क्लियरेंस वगैरह का कोई इशू आ रहा था, वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ था, तो वो उन्होंने उस पर भी माइंड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सारा एक प्लान सेट किया हुआ था कि इस दिन आपने आना है, मैंने इस दिन आपको रिसीव करना है। वो फिर फ्लाइट थोड़ी सी डिले हुई थी, जी जी, लेकिन उस बात पे भी उन्होंने, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छे लोग हैं, इवन कि उन्होंने मुझे अकोमोडेशन भी दी है, जबरदस्त। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और जिनके साथ काम अ, किया वो बंदा बहुत अच्छा है, टिम ग्रॉस, उसको मैं 20 साल से जानता हूँ, ठीक है, टिम हाँ ग्रॉस। जी, और टिम ग्रॉस से जब मेरी पहली इंटरेक्शन फोन कॉल पे हुई थी, तो ही आस्क्ड मी दैट, इरफान, टेल मी व्हाट आई नीड टू डू, एंड आई गाइडेड हिम एवरीथिंग, लाइक इवन accommodating that part for, that कि जो हमें जरूरत होती है एज ए मुस्लिम, कि आपको नमाज पे ब्रेक चाहिए, नमाज को जाना है, तो मैंने वो सब चीजें गाइड की थी। मैंने कहा इफ यू आर कंफर्टेबल टू ऑफर दिस to anyone, a person coming from overseas, even if you provide little accommodation, if you even provide a pickup, so वो हम्म, सब चीजें उसने शायद लिख ली थी मेरे ख्याल से, और उसको 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 उस चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करने में कोई हेजिटेशन नहीं थी। वो इतना बड़ा जनरल मैनेजर है इतनी बड़ी कंपनी का, ठीक है, हाँ उसको जी, उस चीज में कोई हेजिटेशन नहीं थी। वो खुद अपनी गाड़ी लैंड क्रूजर लेकर आया आपको पिकअप करने के लिए, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने कोई 8 महीने पहले ही उससे बातें की थी, और ही जस्ट मैनेज दैट। और मैंने ये भी कहा था कि आप अगर उनको अपने लोगों से मिलवा दें जो आपके उधर रहते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर साहब से आपकी शुरू से बात, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ तो जी, वो उस बंदे के लिए ना पीस ऑफ माइंड होगा, और आपके लिए पीस ऑफ माइंड होगा कि ही और हु एवर कमिंग फ्रॉम दैट फार, इतनी अननोन जगह पे, क्योंकि हम लोगों में फियर एग्जैक्टली, बहुत होते हैं यार, हम रीजनल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कोई वहाँ पे जंगली लोग तो नहीं रहते, या वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि आपके घर पे हमला कर देगा, या कोई सांप या कोई कैंगरू आपके घर में घुस जाएंगे, या कोई शेर वेर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल हमारे एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ग्रुप है उसमें अक्सर हो रहे होते हैं कि यार रीजनल ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी खतरनाक जगह है, वहां पे तो सांप आ जाते हैं घर के अंदर, और वहां पे स्पाइडर्स आके काट लेती हैं आपको। तो इस तरह के जब सवाल हो रहे होते हैं तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, लेकिन मैं उन सब सवालों को सीरियसली जवाब देता हूँ। तो इस वजह से मेरे ये कन्वर्सेशन जो चैट है ना, ये मैंने रखी है सबके साथ, ताकि वो लोग सब देख लें कि भाई आप, मैं तो चलो बोलता ही बोलता हूँ, लेकिन अब दूसरा जब पर्सन बोल रहा है कि ये सब चीजें होती हैं, तो बताइए कितने जंगली लोग आए आपको यहाँ वेलकम करने के लिए, और कुछ कितने स्नेक्स आए आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत डेली तो यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट भी आपको आपकी लाइफ में और आपके डेली बेसिस पे वो बड़ा असर करता है ना, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो सेकंड, मैं आपकी उस बात से थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करूंगा जो आप कह रहे थे कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मुझे मिलाया मिलाया था। जी जी इवन के ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुझे कहा था, इवन कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं कि आपकी नमाजें जो भी आती है ना इस टाइम में, जो कि ड्यूटी की टाइमिंग है, तो आप फील फ्री होके मेरे ऑफिस चले जाया करो, वहां पे आप नमाज पढ़ लिया वाह, करो। क्या बात है। यस मुझे सुबह, नहीं लगता कि कोई इस तरह आपको कहेगा, आपका मैनेजर। नहीं नहीं बिल्कुल ये नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फ्री, उन्होंने मुझे, हाँ जी, फील तक नहीं होने दिया कि रिलीजन वाइज कि एक बंदा आ रहा है दूसरी कम्युनिटी में तो उसको फील भी ना हो कि वो एक दूसरी कम्युनिटी में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं पाएगा। उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए, अब ये आप पे डिपेंड है। आपके डिपेंड करता है। उन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म की एक लेवल हाइट क्रिएट कर दी है। मुझे याद है जब हाँ जी, मैंने आया था 2005 की, मेरी फर्स्ट जॉब थी मैनेजर की, तो मैं मैनेजर बना था इंटर्न के बाद, तो मैंने अपने बॉसेस को बताया यार वो जुमे की नमाज होती है, आई नीड टू गो आउट this हम्म, one, we don't have any pharmacist, so I'm हम्म, afraid that you can't go for your Juma prayers हम्म, until you find an alternative pharmacist to cover you. So I हम्म, was sit back. I said, "What the hell is that? I become a pharmacist here, and I can't even go for a Juma prayer." So I was हम्म। very set back at that time. But things are changed. See? No, completely changed. Even sometimes, because a lot of I think 4, 5 or 6 Jumas I pray here. So every time nowadays he told me that, Burhan, now you can go to your Juma prayer. Oh my God. Yeah, it's very good. This is really emotional thing for me because I don't think that anyone would ever that if we guide them. So we, like, I played a role of a bridging person between employee, because
Tim doesn't know, baby. He may know Dr. What's the doctor's name? Dr. Afzal in your area? Dr. Afzal Junejo. Dr. Yeah. Afzal Junejo Saab. So he is aware about his religion Hmm. activities and but again accommodating a new person is Hmm. I think this is beautiful. And you know जो के प्याला में जो अभी मुर्तजा जो आए हैं उनके हाँ साथ भी जी। उनके बॉस हैं जॉन कैगनी, तो उनके साथ भी मेरी ऐसी कन्वर्सेशन थी। मैंने कहा था जॉन देखो आप ले रहे हो ओवरसीज से, उनको फील कराना कि यू आर वेरी अकोमोडेटिंग, उनको जो चीज हम्म। चाहिए उनको उनको अगर मुस्लिम है तो उनको उनकी रिलीजियस थोड़ी सी परमिशन देना, मेक श्योर कि उसमें तुम्हें कोई एतराज ना हो और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 मिनट का ब्रेक तो तुम वैसे ही देते हो किसी को चाय पीने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो हो जाएगा। हाँ जी। तो इस पे क्या मसला है। उन्होंने भी उनको हम्म। प्रेयर रूम दिया है मुर्तजा को। मुर्तजा ने कल अपने चैट के अंदर बताया कि उन्होंने एक डेडिकेटेड क्या एरिया दिया अच्छा। उनको, तो वो जाके आराम से अपनी जोहर की नमाज या असर की नमाज जब भी उन्होंने पढ़नी होती तो कर लेते। तो चलिए तो ये रिलीजियस बात है, लेकिन काम के बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि काम कैसा चल रहा है, काम होता क्या है, इंटर्न फार्मासिस्ट क्या करता है, ताकि सुनने वाले जब सुने तो उनको अंदाजा हो कि काम होता क्या है, क्या बैठ के काम होता है या खड़े होके काम होता है, थोड़ा सा ये बताइए। अच्छा, मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा काम बैठ के था। अरे तो वाह, ओके। इधर जो है तो थोड़ा खड़े होके काम है, ओके, तो आपके पैर वैर लेकिन थोड़े से दर्द वर्द नहीं तो नहीं करते शुरू के दिनों के? दर्द बहुत हो रहा है। लेकिन स्टार्ट के दिनों में तो पहले दूसरे तीसरे घंटे में शुरू हो जाता था, लेकिन अब आजकल ऐसा हो रहा है कि आखिरी 2-3 घंटे में ही होता है, बाकी टाइम में नहीं होता। ओके ओके। तो वो यूज्ड टू हो गया हूँ। बाकी इन्वायरमेंट अच्छा है, टेक्नीशियंस हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक एक चीज़ आपसे पूछ के वो कर रहे होते हैं, इवन कि आप इंटर्न भी हो। और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि मतलब वो जो मैनेजर है मेरे, वो मेरे से बात इस तरह कर, वो जब भी किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं मुझे, तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास न्यू जॉइनर है, इंटर्न फार्मासिस्ट है, लेकिन एक्चुअल ये फार्मासिस्ट है। ओके ओके। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेके जब आप वहाँ पे जाते हो एज एन इंटर्न, तो आपको वैसे फील होता है, लेकिन वो वो लोग आपको फील नहीं कराने देते। बिल्कुल। इन्वायरमेंट अच्छा है और डिस्पेंसिंग अच्छी है, काउंसलिंग हो रही होती है पेशेंट की। और अभी क्योंकि फ्रंट पे वो नहीं लेके आए, अभी मैं वेस्टर पैकिंग में हूँ, ओके। जो कि कम्युनिटी फार्म उसमें मेडिकेशन जा रही होती है। तो वो नर्सिंग को कॉल करना, डॉक्टर से कॉल करना, किस तरह तो आपको कम्युनिकेशन का काम दे दिया उन्होंने कि अभी डॉक्टरों को हाँ कॉल जी, करो, नर्सेस को हाँ कॉल जी। करो। तो वो आपको इवन के क्यों लास्ट क्यों उन्होंने भरोसा किया कि आप सही बात करोगे, गलत बात नहीं करोगे? उन्होंने क्या चीज ऐसी हाँ, देखी कि आपको फोन ही पकड़ा दिया उन्होंने कि भाई बात करो सबसे? हाँ जी, फ़ोन अभी पकड़ाया है, लेकिन रूटीन में नहीं पकड़ाया। ओके बताते थे कि ये चीज़ें हैं, आपने इस तरह डील करना है। तो वो ऑब्जर्वेशन के साथ-साथ बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। ओके। लास्ट टाइम एक कम्युनिटी हॉस्पिटल है, उधर मेडिकेशन रिव्यू करने के लिए फार्मासिस्ट जाता है, जी जी। तो वहाँ पे मुझे लेके गए हैं। अरे वाह, ओके हाँ, तो वहाँ पे भी मेडिकेशन रिव्यू किया, मेडिकेशन पेशेंट को चल रही थी, तो 2 बीटा ब्लॉकर एक ही पेशेंट को जा रही थी, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ओके। तो वो मैंने हाईलाइट किया है, तो वो उसको बताया मैनेजर को, तो वो उसने फिर आगे डॉक्टर से बात करके उसने एक चेंज कराया। एक को हाँ, एक को सीज़ किया, दूसरे को उसने कंटिन्यू किया। तो आपको पता है ना कि आपका इंटर्न प्रोग्राम में आपको अलाउड है कि आप जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बनने का जो जर्नी है होम मेडिसिन रिव्यू फार्मासिस्ट का, वो हाँ आप जी, उसका पार्ट 1 खत्म कर सकते हैं। यू नो दैट एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू एज ए इंटर्न फ्रॉम गिल्ड, डू यू नो दैट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा क्योंकि वो हमारे साथ जो लखनऊ है पोर्ट पीरी में उन्होंने उसको खत्म कर दिया करके। और अच्छा। और साथ में वो एक मैंने उनको कोर्स शेयर भी किया था, आपको भी शेयर किया है कि वो ब्लैकमोर का एक सर्टिफिकेशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की, वो होती है हुँ, 12 महीने की है। तो वो भी स्टार्ट कर दें, वो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि आपको पता है वाइटामिन कितनी ज़्यादा यूज होती हैं, बहुत ज़्यादा। जितने फिश ऑयल यूज होते हैं, कैल्शियम यूज होती हैं। और हुँ, कस्टमर आते भी हैं पूछने, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे जो आंसर है वो हर फौरन देर एंड देर मिल जाए। और जब फार्मेसी असिस्टेंट कहीं फंसते हैं तो वो सीधा फार्मासिस्ट के पास आते हैं या इंटर्न के पास आते हैं। तो वो अगर आप कर लेंगे ना तो टीम के सामने आपकी जो वर्थ है ना जो अभी है ना वो एक 10 फोल्ड और ऊपर चली जाएगी क्योंकि एग्ज़ैक्टली। वो समझेगा ये तो हंगरी बंदा है भाई एजुकेशन का। अगर आपने हुँ, वो वाला कोर्स भी कर दिया रात को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मेरे ख्याल से। अगर आप चाहें तो वो 2-3 हफ्ते 2 घंटे लग के आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री ओके। जो कोर्स है ना वो तो हमारे जो लखमोर साहब है उन्होंने तो हद ही कर दी। 12 महीने का कोर्स 1 महीने में ख़त्म कर दिया ड्यूरिंग क्रिसमस हॉलीडेज। उन्होंने उसको देश चार मारे इधर उधर पढ़ के बस लग के लगातार पढ़ते रहे और पूरा सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया। सर्टिफिकेट की कॉपी भेजी थी उन्होंने।
मैंने कहा ये जाली सर्टिफिकेट है, असली सर्टिफिकेट है? कहते हैं मैंने पता किया इसको और अपने लिंक पैशन है ना, जो जिसको पैशन है उसी हिसाब से है। उसको हाँ जी, उसको हर एग्जैक्टली। चीज की भूख है, वो कहता है। और अभी मजे की बात है, उसने मुझे इंटरव्यू में बताया कि मैंने जब शुरू में जब वेबिनार्स किए थे लास्ट ईयर, तो मैंने इनको पिक्चर दिखाई थी जो उस वक्त के विनर थे, इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड विनर जो थे। तो वो उसको क्लिक कर गई यहाँ पे बात ना, तो उसने अभी उसको नॉमिनेशन हुई है इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर बाय अच्छा। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग विच वी हैव डिस्कस इन दोज वेबिनार्स ना। तो हम्म। आपके लिए ही बता, आपके साथ ये शेयर करने का मतलब ये है कि आप भी हम्म। इसको पैशन को फॉलो करो, और इसके लिए ज़्यादा एफर्ट ही करने होते हैं, बस 10-15 मिनट टाइम निकाल के आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। अगर आप ये बात करोगे टीम को तो हो सकता है वो कर दे, अगर टीम नहीं करे तो कोई और फार्मेसिस्ट आपको किसी से भरवा के आगे फॉर्म भेजना होता है, और फिर वोटिंग होती है उसके ऊपर। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड यू नीड टू डू लिटिल बिट 120% इन योर जॉब, लिटिल बिट एक्स्ट्रा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करके देना होता है। So then you अच्छा। go into the queue, or once you receive that, even if you go to the finalist, that's a हम्म। huge recognition Australia wide. आपकी हम्म। फोटो, आपका नाम, और वो आपके कैरियर के लिए बहुत ही क्विक बूस्ट होता है। तो ट्राई टू डू दैट। आई नो दैट यू आर पैशन अबाउट डूइंग मास्टर्स। मैंने आपको थोड़ा सा रोका था कि अभी रुक जाओ, हाँ जी। बात खत्म करना। तो ये जो चीजें ना, ये बड़ी फन पार्ट है। अगर आप ये सब चीजें करके आगे जाओगे ना, और फिर मास्टर में जंप करोगे अगले साल, तो हाँ जी। you will get a huge privilege at the university level as well, कि यार ये बंदा इतनी चीजें करके आ रहा है पीछे से। तो हम्म। you will see a huge difference. That's why I said no, this is not the right time, maybe do it या out year or 2 year. यस यस, मैंने उसी को फॉलो किया है। वो मैंने फिर गिल्ड का प्रोग्राम ही लिया है, और मैंने उसका प्रोग्राम नहीं लिया क्योंकि आपने कहा था कि फिर बाद में मुझे लोग बता रहे हैं कि शुक्र है आपने नहीं लिया। मैंने कहा हाँ, मुझे गाइड कर दिया था, क्योंकि मैं उसको बड़ा फॉलो करता हूँ। यूनी ऐसे का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, लेकिन वो आपको असेसमेंट और उससे गिल्ड बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, और आपको सब फील्ड चीज़ें आपको फार्मासिस्ट बनाना चाहता है, बनाना कम्युनिटी चाहता है। चैंपियन फार्मासिस्ट बनाना चाहता है। हम्म। यूनी में जाएंगे तो वो आपको कुछ एकेडमिक तरफ ले जाना चाहते होंगे, आई हाँ डोंट जी। नो। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिनके साथ थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस वजह से मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई दूर हम्म। रहो, जो काम इजीली हो सकता है वो करके खत्म करो वो ना, हाँ, वो कर लो, क्यों मुश्किल में पड़े बंदा। क्यों मुश्किल में पंगा ले और कुछ कहना चाहेंगे बुरहान? यहाँ पे सोशल लाइफ कैसी है आपकी? यहाँ पे कोई, आप गाड़ी चला रहे हैं या किस तरह ट्रांसपोर्ट? नहीं, गाड़ी के लर्नर के लिए असल में मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे पाकिस्तान में भी कोई लाइसेंस नहीं था, यूएई का भी कोई हाँ, लाइसेंस यू नहीं टोल्ड था। मी, यस यस यस, सॉरी, यस यस, आपने बताया था मुझे, हाँ यस। जी, तो लर्नर के लिए मैंने वो कर दिया है अप्लाई। बाकी पुश बाइक ली हुई है। ओके। सैटरडे संडे वो बाहर कहीं जाते हैं। फिर डॉक्टर्स इधर हैं, डॉक्टर मुदस्सिर हैं, डॉक्टर नुमान कभी कभार आ रहे होते हैं इधर, और उनके साथ मुलाकात होती है। लास्ट अफ्तारी पे भी इकट्ठे थे। तो एडलेट क्यों नहीं आए? जो छुट्टियां थी इतनी सारी, तो इसमें आप एडलेट आ जाते किसी के साथ, यहाँ तो बड़ा गेमा गेमी थी छुट्टियों में। बस वो जा रहे थे यहाँ से डॉक्टर, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, तो अच्छा, मैंने कहा नेक्स्ट मुनासिब टाइम। निकल जाओगे, ओके ओके ओके। हाँ जी। चलिए ठीक है। गाड़ी या बस जो है, वो बस तो बहुत ही डेली की बस अवेलेबल है मेरे ख्याल से आपके हाँ जी, डेली एडलेट। के पास अवेलेबल, लेकिन वो टाइमिंग का है थोड़ा सा। जी जी, क्योंकि अभी हमारे साथ एक फार्मासिस्ट पाकिस्तान से आई है, तो वो भी बस से एडलेट आई थी, बस से फिर इधर पोर्ट पीरी आई है अभी। शी इज़ फ्रॉम कराची। तो उसने अच्छा। काम स्टार्ट करना है अगले वीक से, मतलब ये छुट्टी है इसके बाद से उसने काम स्टार्ट। हम्म, तो सही सही सही। और आप उनको भी जानते होंगे, फैसलाबाद से अदनान जो है, वो भी बेला में काम कर रहे हैं, शायद आप अद, या ना। चलिए मैं आपको अदनान। कांटेक्ट करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि उनका भी हमने, मुर्तज़ा भाई को जानता हूँ। फ़हीम फ़हीम उनको भी जानता हूँ। जैसे फ़हीम, जी जी, फ़हीम फैसलाबाद और ग्रेजुएट है। हाँ जी, अभी तो बाकी लोग भी आए हुए हैं, सत्तार भाई हैं, वो आए हुए हैं जी जी, वो क्वींसलैंड में थे अभी। कल क्वींसलैंड में। हाँ जी। वो जूम पे थे हमारे साथ, जो हम कल एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो उसमें उन्होंने काफ़ी सही सही। इनपुट दी थी कि बहुत सारे इंडस्ट्री के फार्मासिस्ट थे उसके अंदर। वो कह रहे थे कि हमें इंडस्ट्री ही की जॉब करनी है, तो मैंने उनको गाइड किया था कि इंडस्ट्री की जॉब जो है ना, वो डिफ़िकल्ट है। आपको यहाँ पे हम्म। इंटर्न फार्मासिस्ट करके ही आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, पहले आप हम्म। फार्मासिस्ट बन जाओ। वही बात कि आप मास्टर्स करना चाहते हो, आप मास्टर बाद में कर लेना। मैंने उनको यही पहले आप एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन ले लो। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन कर लो, इनकम कर लो थोड़ी सी, 1-2 साल ये करके फिर बाकी जो करना है वो कर लें। तो दिस इज व्हाट आई सही है। एडवाइस देम एज वेल। और सही है। ये कि जो कि हमारे साउथ ऑस्ट्रेलिया की रीजनल एरिया के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कटीना में है क्या? कटीना में क्या खास बात है कटीना की कोई? कॉपर कोस्ट है बेसिकली। वीट
वाला एरिया है, जो कि इनकी वीट की सारी जो इनकी चल रही है इकोनॉमी, वो इस एरिया में ही सारे वो कर रहे हैं। ओके। तो पुराना ये कॉपर कोस्ट का है, सारी कॉपर की जो है ना इनकी मादनियात वो यहीं से निकलती थी। वो पुरानी रेल्स वगैरह, वो एक अच्छा म्यूजियम वगैरह बनाया हुआ है। जी। तो वो इनका है। मुझे याद है कि मैं 2 साल पहले इधर आया था रेस कार की हम्म, एक्टिविटी करने के लिए। वो ड्रैग रेस कहते हैं उसको ना। उस पे उन्होंने जो जहाज की लैंडिंग स्ट्रिप है ना कैडिना के अंदर, वो उन्होंने बुक की हुई थी। उस वक्त सारी फ्लाइट्स उन्होंने रोक दी थी उस दिन की। और वो रेस क्लब ने बुक की थी, ऑस्ट्रेलियन मसल कार क्लब एक है, उसने एक्टिविटी की थी। उसमें सारे साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो कार एंथुजियास्ट हैं, जिनके पास स्पोर्ट्स कार हैं, जो तेज भगाना चाहते हैं, तो वो सब वहाँ पहुंचे हुए थे ना। तो मैं भी अच्छा। पहुंचा था। मैं अपने बेटे के साथ, मेरे बेटे को गाड़ियों का शौक है, तो हमारे पास वो थी निस्सान की एक गाड़ी थी GTR। बहुत ही क्विक हम्म, उसका पिकअप होता है। तो हमने भी उस पर ड्रैग रेस की थी उसके अंदर, 13 सही सेकंड सही। के अंदर। तो बड़ा मजा आया था। तो करीना हम आए थे, तो हमने खूब इंजॉय किया था एयर स्ट्रिप के ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये हर साल एनुअल फंक्शन होता है यहाँ पे, ये वाला करीना नहीं आर्टिस्ट। नहीं, इनके फंक्शन होते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा क्योंकि हमारा रमज़ान भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कुछ दिन ही रहेंगे रमज़ान के, तो फिर उसके बिल्कुल। बाद यहाँ पे एक सोशल शूटिंग लाइफ की। शूटिंग क्लब भी है। किसी हाँ। को अगर शूट करने का शौक है तो निशाने लगा के वो हम्म तीर उड़ाते हैं, उस पर आप गन से उसको उड़ाते हैं। ये भी एक बड़ा मशहूर है यहाँ पे करीना के अंदर। मेरे दोस्त और हैं। इधर मोस्टली आपका वो जो वोलोरो में ना वो है, आपका, वाटर पार्क हाँ वाटर पार्क है, गए हैं बीच आप? है। वो क्योंकि मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो यहीं पे आते हैं, अभी इस आपका समय चक्कर काफी लगा सारे उधर? वहाँ। चक्कर लगा, आप गए हैं, विजिट किया हुआ आपने? हाँ जी, किया था मैं। हम भी अच्छी कई जगह है, दफा बहुत अच्छी वाटर जगह। पार्क पे हम भी आए फैमिली के साथ, 2-3 फैमिलियां मिलके हाँ पिकनिक। जी। जी जी। तो मेरे बेटे ने एक दफा उधर पानी के अंदर गाड़ी उतारी हुई थी नीचे ना, बिल्कुल समंदर में गाड़ी अच्छा, चला बिल्कुल रहा था। नीचे। हाँ, गाड़ी चला रहा था। तो वो मैंने वीडियो शेयर की हुई है अपने टिकटॉक के ऊपर ऐसे करके ना। वो बीच भी सरफेस बीच है, लेकिन अच्छा जी है। जी जी जी। तो अच्छा है। और मुझे तो कड़ीना तो बहुत ही मशहूर है। सॉरी, कड़ीना के साथ वुलरू जो है ना, वो बड़ा अट्रैक्टिव स्पॉट है साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि हाँ उसके जी। घर हैं बीच के साथ हैं, और पीछे हाँ जी। पानी खुला हुआ होता है, पानी का एक समंदर नजर आ रहा होता है। तो वो एक समझे बहुत ही आइकॉनिक जगह है साउथ ऑस्ट्रेलिया की। जो जो जिनको बोटिंग का शौक है ना जिसको, तो हम्म। वो वहाँ आके रह सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो रिटायर होते हैं, या बहुत सारे जो इंथुजियास्टिक होते हैं जिनको बोटिंग का शौक होता है, तो वो वेलुरू में जरूर से घर लेते हैं। और घरों की कीमत बहुत ज्यादा है, मुझे पता है। वेलुरू हाँ जी, बहुत उस एरिया में घरों की कीमत ज्यादा है। बहुत ही और कॉस्टली घर है ये हाँ असल। जी, कॉस्ट पे, क्योंकि बिल्कुल ओशन के साथ ही है ना। तो ये है अच्छा है। आहिस्ता बाकी आहिस्ता चीजें और भी एक्सप्लोर करेंगे। ये बताना चाहेंगे जो सुन रहे हैं आपके साथ, कोई 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 ऐसी पॉइंट्स, बर्निंग पॉइंट जो आपको लगता हो कि जो कि किसी को फायदा दे सकता है आपकी जर्नी में? जो मेन चीज चीज है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है। आपने एक चीज के लिए कोई प्लान किया है कि मैंने ये करना है, तो उसमें काफी सारे हर्डल्स आएंगे। ठीक है। तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है। वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वो आ सकती हैं, कि कभी फाइनेंशियल इशू, कभी डोमेस्टिक इशू, काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन आपने कोई चीज़ सोची है, तो उस पे फॉलो करें, उसको फॉलो करें, और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को लेके चलें। तो बिल्कुल। एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो दैट्स मैं वेरी यही कहूँगा कि लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। तो कंसिस्टेंसी के बारे में आपने कहा है कि हिम्मत ना हारें, कहीं हर्डल आए तो बैकअप ना कर जाएं, भाग ना जाएं जर्नी। बैकअप करें, हाँ जी। क्योंकि अभी जो हमारे से पहले शायना बात कर रही थी, वो कह रही थी कि जो कॉस्ट है ना, जो आपने खर्च की है इनिशियली, वो सब रिकवर हो जाती है। हाँ नसरीन जी। की बर्थ में मेरे साथ, तो उन्होंने भी सबसे पहले ये बात की है, डोंट अफ्रेड टू स्पेंड मनी ऑन योर कैप्स एग्जाम, डोंट स्पेंड अफ्रेड टू स्पेंड मनी, whatever you're going to spend you will recover there in first 2 months। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही लगता होगा आपको, कि जो आपने टाइम स्पेंड किया है या फीस वगैरह की, तो दैट इज हाँ, नॉट। शुरू पैसे बहुत लगते हैं। जब कोई पूछे ना, कोई भी वैसे पूछते हैं, देखे कितना पैसा लगा है, स्टार्ट में जो भी आपसे पूछते हैं ना, मैंने कैप्स के लिए तैयारी करनी है, तो आपका कितना पैसा लगे, तो मैं उनको डराता नहीं हूँ। मैंने कहा पैसे लगते हैं, लेकिन कम कम अमाउंट में, एक उसमें ना लगते हैं, पार्ट में लगता है, डिफरेंट एकदम एकदम पार्ट्स में पार्ट। लगते हैं। जी डायरेक्ट एक ही दफा नहीं लगते। तो अगर आपकी जॉब कहीं है तो उसको कंटिन्यू रखें, और साथ साथ ताकि आप वहां से आपको फाइनेंशियल एड मिलती रहे, तो हो जाता है। आप इस तरह ना करेंगे, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन पार्ट्स में लगते हैं, तो
घबराएं नहीं, तो इस वजह से मैं भी अभी और रिकवर हो जाते हैं, ये तो पक्की हो बात जाता रिकवर तो वाकई, वो तो आपको है। पता है जब डॉलर्स आते बैंक अकाउंट में सब आ जाते हैं तो वो सब हिसाब बराबर हो जाता है शुरू के पहले दो हैं, महीने के अंदर, ये 3 महीने के अंदर, ये ना। ऐसे ही है तो पहले दो ये तीन बताना महीने बहुत जरूरी है कि भाई पास कर लोगे, जॉब हो जाएगी, तो जो कुछ भी खर्च किया है ना वो विद इन 2 मंथ सब वापस आ जाएगा। अब वो हम्म पैसे आप इनिशियली कहीं से दोस्त से लेके इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, या हम्म बहुत सारे कंट्रीज में लोग बैंक से पैसे लेते हैं अपने एजुकेशन पर्पस के लिए, तो वो इस तरह ऐसे करते हैं। कुछ पेरेंट्स से हम्म पैसे लेते हैं। अच्छा हम्म बुरहान, ये बताओ जो पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी फार्मासिस्ट बैठा हुआ है इस वक्त, फ्रेश फार्मासिस्ट, और हम्म। उसमें जज्बात बहुत होते हैं कि यार बस मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा लेना है और पहुंच जाना है मैंने, और वहां जाके मैंने अपना कैप्स कर लेना है, बहुत आसान हो जाएगा कैप्स, तो उसके बारे में क्या कमेंट है आपका? उसके बारे में मैं तो यही कहूंगा कि स्टूडेंट वीजा के लिए आपका पैसा उतना लगेगा जितना आपकी कैश जर्नी जर्नी में लगता है। मैंने जो कंपेयर किया है, तो बजाय इसके कि स्टूडेंट वीजा पे आए, फिर स्टूडेंट वीजा के लिए आप कैश भी तैयारी करेंगे, फिर एक आपने अपनी उस स्टूडेंट लाइफ को भी, हम्म, उसके भी काफी सारे असाइनमेंट हैं, वो चीजें हैं, तो ये डबल हो जाएगा। तो आप डबल माइंड होने की बजाय आप कैब्स की तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान में जो इंडिया में जो भी लोग बैठे हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आप देखिए वो एक बिग अमाउंट है, एक ही दफा आपने देनी है और स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है। बिल्कुल। एज कम्पेयर टू कैब्स देखें तो आपने एक पार्ट्स में पैसे देने हैं और लगाने हैं, जो मेरे ख्याल में तो यही अच्छा है कि आप कैब्स की तरफ आएं, और बजाय इसके कि स्टूडेंट वीजा की तरफ जाएं। हाँ ठीक है, स्टूडेंट वीजा आप अभी अप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा तो आप फौरन आ जाएंगे। तो फौरन आके आपने भी तो एक स्ट्रगल करनी है ना, उस बहुत बड़ी स्ट्रगल। स्ट्रगल है। हाँ लोग रो रहे होते हैं जब मेरे से फोन पे बात करते हैं। अभी एक लड़का कराची से आया था, मैं नाम नहीं बताता, लेकिन ही वॉज क्राइंग ऑन द फोन। जब मैंने उसको बताया ना, भाई तुम इतनी जल्दी भी क्यों आ गए, इतनी बड़ी हम्म मास्टर डिग्री करने आए हो, तुमको कैप्स का नहीं पता था? कहता मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा हम्म अगर सोचो इतना बड़ा चंग पैसा दे, कहता है मैं प्लॉट बेच कर आया हूँ घर में, और हम्म। यहाँ पे कोई $90,000 की फीस देनी है उसने अपने दोस्त 3 साल और के दोस्तों की, ठीक है, $90,000। डॉलर ठीक है, बहुत बड़ी आपकी तनख्वाह जो है वो आप 1 साल में नहीं कमाएंगे, पता नहीं कितने टाइम में कमाएंगे, तो वो पैसा कहीं से आ गया, घर में अब्बा ने दे दिया उसको, और पीछे से पुश कर दिया भाई तू ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाके अयाशी करो, जाके तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, ऑस्ट्रेलिया आके सब पैसे दरख्त से उतरने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होता। नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ में जैसे आपने बोला ना कि आपको अगर कैब्स भी करना है और फिर पढ़ाई भी करनी है, और फिर एक हम्म, होता है कि जॉब करके पैसे भी कमा रहे हैं, थोड़ा सा लिविंग कॉस्ट भी निकाल रहे हैं, तो हाँ वो जी। बहुत ही दो चीजें एक्स्ट्रा बर्डन हो जाती हैं। और हम्म, मास्टर्स करके मेरा नहीं ख्याल से कि अगर आप मास्टर करके टिम रॉस के पास जाओगे और बोलोगे यार मुझे तेरा जॉब दे दो, तो उसको कोई ज्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ेगा, हाँ जी। जॉब में नहीं नहीं। मास्टर डिग्री से टिम ग्रॉस को, जो ओनर है आपका, उसको क्या खुशी होगी? जो नहीं। आपके रजिस्ट्रेशन से उसको मतलब है कि भाई ये बंदा रजिस्टर है, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज सर्टिफाइड, ही कैन डू HMR, दैट्स मोर देन इनफ टू अर्न अ यस। गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। हाँ, कुछ अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप मास्टर्स करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि जब हम जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पे हाई 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 डिग्रियां होनी चाहिए, तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। कोई PhD कर लेता है, वो समझता है कि मैंने पता नहीं सरहद पार कर ली है, अब मेरे आगे कोई भी नहीं है। अब बहुत सारे PhDs मेरे पास आते हैं ना अभी ग्रुप के अंदर, कि मुझे बताएं, पाथ पे बताएं, तो वो पहले तो सीधे तरीके से जवाब भी नहीं दे रहे होते हैं, वो इतने ज्यादा एरोगेंसी में होते हैं अपनी PhD की वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको सल्यूट मारना पड़ेगा पहले, यू करके ना, हेलो सर, आपको मैं प्रोटोकॉल देता हूँ, फिर आप नीचे आएंगे, तब मैं आपसे बात करूँ, इस ये चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है। इवन के हाँ जी। एग्जाम्पल है मेरे पास एक स्टूडेंट है फार्मेसी के, यहाँ पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ही इज फ्रॉम इरानियन बैकग्राउंड, he हम्म। did PhD in biotech. He ओह। got a job. What he हम्म decided? Go into the pharmacy school in University of South Australia. Now he's doing an undergraduate degree. हम्म That's a big eye opener for anyone who has a PhD degree who want to come to Australia. They हम्म have less chance of your acceptability. The हम्म basic requirement to get into work in pharmacy field is your bachelor degree and your हम्म। CAPS exam. That's it. या Isn't it? या आप अग्री करोगे इस बात पे? आप तो ये पहुंच। एग्जैक्टली, मैं 100% एग्री। तो तो ये बात बहुत ब्रॉडर तरीके से हमें मौका मिल रहा है इस बात को डिस्कस करने का। जब मैं अकेला बात करता हूँ ना, तो मुझे फील होता है सिर्फ मेरा ही वर्जन है, लेकिन मैं नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं नहीं, देता ये हूँ। तो रियलिटीज है, आप ग्राउंड रियलिटीज को जो यहाँ पे बैठा है वही देख रहे हैं ना, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से 100%। जी जी। तो मेरे ख्याल से मैं उस बंदे को कन्विंस करूंगा कि वो यार मेरे साथ कैमरे पे कन्वर्सेशन करे। दैट एग्जाम्पल विल
एक्चुअली shattered everyone ड्रीम के भाई PhD करके उस बंदे को जॉब नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया में, एंड ही इज ए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, इज ए ग्रेजुएट, ही इज ए स्कूल पर्सन। उसकी फैमिली जब वो यंग थे तब आए थे यहाँ पे, तो वो पढ़ते 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 माइंडसेट वही था कि बाहर का माइंडसेट पढ़ के बस PhD कर देना। उसने PhD मार दी जाके, जब जॉब मार्केट में आया जॉब नहीं मिली उसको। देन उसको रियलाइज हुआ कि यार फार्मेसी की फील्ड में बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। देन ही जम्प इनटू फार्मेसी स्कूल, और उसकी वाइफ भी फार्मासिस्ट बन रही है। तो आई विल अच्छा ट्राई टू, मैं बहुत सारे लोगों को मशवरा भी देता हूँ, मेट्रोमेनल मशवरा भी दे देता हूँ कि जिसने अगर शादी नहीं की है ना, तो वो शादी फार्मासिस्ट से करे। क्योंकि टिम ग्रॉस की एग्जांपल आपने देखी होगी, घर में उनकी जो हाँ जी, वाइफ है उनकी, वाइफ। वो हाउस वाइफ थोड़ी हाँ होगी, लेकिन वो फार्मासिस्ट क्वालिफाइड भी है पीछे से ना। हाँ जी। जो यहाँ पे सक्सेसफुल फार्मेसी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनके घर में उनकी बीवियां फार्मासिस्ट कहीं ना कहीं से होती जरूर है। तो ये मैसेज मैं जरूर से सबको देता हूँ कि भाई मैंने बहुत ऑस्ट्रेलियन फैमिलीज को देखा हुआ है, मैं बहुत जनरेशन, थर्ड जनरेशन फार्मासिस्टों को जानता हूँ जिनके दादा फार्मासिस्ट थे, दादी फार्मासिस्ट थी, फिर उनका बेटा और उनकी जो शादी हुई वो भी फार्मासिस्ट थे, उनके जो बच्चे हैं वो भी फार्मासिस्ट हैं। इधर इधर व्याला के अंदर, सॉरी व्याला कह रहा हूँ, क्रिस्टल ब्रुक, आपके से थोड़ा सा करीब एक जगह क्रिस्टल ब्रुक, आपने नाम शायद सुना हो, साउथ अच्छा, करिए। तो उनकी भी सेकंड जनरेशन है फार्मासिस्टों की। इनकी भी यही सेकंड जनरेशन चल रही है ना, टीम क्रॉस की। तो यू मुझे नहीं पता था उनके पेरेंट का, लेकिन मैं उनको जानता बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन सोबिया को पता था, मेरी वाइफ को पता था कि हाँ उनके पेरेंट्स फार्मासिस्ट थे। एंड यू नो ही वाज अ रजिस्ट्रार हाँ फॉर जी। फार्मेसी बोर्ड। तो मेरा उससे पहला हम्म इंटरेक्शन 2003 में हुआ था। फर्स्ट टाइम आई मेट हिम इन 2003 इन फार्मेसी हम्म, बोर्ड। अच्छा। तो वहाँ पे उसने मुझे वेलकम किया था, और उसने मुझे प्रिडिक्ट किया था कि माइट इफ यू डू, इफ सो योर वाइफ डू दिस कैफ्स, you will be laughing. This is what he said to me. I remember back in time. So, हम्म or this amazing journey that me and my wife completed, and he is so happy, always हम्म happy to talk to me, always pick my phone on first हम्म call, and we meet sometime like once in a year in conferences. But when हम्म when we talk, everyone हम्म, watch that. What is the connection between these two guys? yeah, There's yes, no yes. there's no catch. We are not trying to take any benefit from each other, but we're just good friends. And हम्म, benefit of good connection, a live example is you. When I spoke yes. to him, and things change for someone else. So try to stick with this policy that try to help others and try to keep your connection strong for long Yep, term. Yes. yep. अभी किसी ने सवाल किया है कि प्लीज टेल अस हाउ मच टैक्सेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फार्मासिस्ट सैलरी पर मंथ ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड फुल रजिस्ट्रेशन, एंड थैंक यू व्हाट यू डूइंग फॉर द फार्मासिस्ट। तो परसेंटेज में बता दीजिए या कोई अमाउंट में बता दे कि क्या टैक्स कितना कंपोनेंट जाता है, 20% जाता है, कितने $200 कटते हैं, $300 कटते हैं, $1000 पे, क्या क्या रेशो है टैक्स की, अभी क्या चल रही है? मेरे ख्याल में 300 है डॉलर, 1000 पे। 1000 पे, तो इट्स लाइक 30%। तो जिसने 30%। क्वेश्चन किया है कि 30% इज टैक्स ऑन योर, एंड टैक्स का बेनिफिट क्या है आपको, इतना जबरदस्त कंट्री मिला हुआ है रहने के लिए, रोडें पक्की हैं यहाँ पे, और ऐसे। कोई डकैती नहीं हो रही है, कोई मोबाइल स्नैचिंग नहीं हो रही है, कोई किडनैपिंग नहीं हो रही है, सेफ माहौल है यहाँ पे। सेफ माहौल है। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, कोई भी चीज किसी भी कंट्री में जाए ना, सिक्योरिटी। तो वो आपको पहले 100% जब मिल रही हो, तो फिर आपको टैक्स जब आप देते हैं तो आपको इससे कोई कोई मसला फर्क नहीं है, कोई नहीं। मसला नहीं, टैक्स टैक्स इज लाइक गवर्नमेंट हम्म, फंडिंग जो कि आप दे रहे हैं ताकि वो आपको ये फैसिलिटी दे सके ना। जल्दी। यस। और और एक चीज और बताना बहुत जरूरी है कि एक सुपर, एक पेमेंट होती है, आपको पता होगा ना, रेस्ट सुपर, आपने शायद अकाउंट खोला होगा। हाँ जी, रेस्ट सुपर अकाउंट खोला। वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो आपकी सैलरी होती है उसके ऊपर एक 10% आपके अकाउंट में चला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये होता क्या है ये। बेसिकली वो जो आपकी सैलरी जो भी आती है ना, उस पे जो 10% आपका सेविंग होती है, वो इस अकाउंट में ही चला जाता है। वो मेरे ख्याल में आप 3 मंथ के बाद आप इसको हाँ क्वार्टरली, कुछ कंपनीज क्वार्टरली करती हैं, कुछ क्वार्टरली करती हैं। तो डिफरेंट सेटिंग होती है, लेकिन वो 10% जो आपने अर्न किया है ना, जो भी डॉलर, उसके ऊपर 10% ऑन द टॉप ऐड करके वो उधर डाल दिया जाता है, जो कि वो आपका तो डाल देते हैं। और एग्जैक्टली। उस सुपर फंड को खोलने में आपको अपनी कोई नेक्स्ट ऑफ किन डिफाइन करना होता है, इन केस अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो उसमें इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होते हैं, एग्जैक्टली। $1 लाख या $2 लाख, जो कि वो आपको फैमिली को मिल जाते हैं। तो ये भी एक ऑटोमेटिकली उसमें होता है। और बेनिफिट है। जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम यहाँ पे होते हैं। एग्जैक्टली।
तो आपकी भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस रखी होगी। ब्यूपा कैसे है मेरी इंश्योरेंस, और उसका 3 मंथ का वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी उसकी पॉलिसी ले रहे हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ हैं। जो भी तो बेसिक्स कवर जो आपको। बेसिक, हाँ जी, बेसिक्स हैं, तो वो भी आपको फायदा दे जाती हैं। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो वो सारा उसमें कवर कर देते हैं। बिल्कुल। और हाँ आपने नाम अपने आपने देखा होगा, हमारे कोलीग उनकी डेथ हुई, इंटर्न हाँ फार्मासिस्ट जो एली थी, उनकी इंश्योरेंस ने उनकी फ्यूनरल कॉस्ट पे की थी, क्योंकि एग्जैक्टली। हमें किसी को भी नहीं पता था। ये सब लर्निंग प्रोसेस था हमारे लिए। जितने भी मैं 20 साल से, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि ये भी कॉस्ट एक आती है जो कि पे हो जाती है इंश्योरेंस के जरिए, इस इंश्योरेंस को रखने से। So that was covered during that process. So it was shocking news for me, shocking news for every pharmacist. But यस। that's the reality. Safety on the road is important. You need to have a good या car. You need to have a reliable car with airbags, because यहाँ पे रोड पे अगर आपको नींद आ जाए या कुछ हो जाए तो that become a disaster. और यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। होपफुली आप सक्सेसफुल होंगे अपने आगे वाले एग्जाम में जो आपका थैंक होने यू। वाला है 70% के बाद, और फिर ओरल एग्जाम हाँ होगा जी। आपका। तो हाँ जी। उसके लिए आपकी सारी तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। आपने मुझसे हाँ पूछा जी। इंटर्न के दौरान एक ग्रुप कोई है जो, जहाँ मैं, हाँ जी। तो मुझे भी याद आया कि एक ग्रुप है जो इसमें कोई 1000-2000 फार्मासिस्ट हैं जो सिर्फ हम्म, इंटर्न हैं वो लोग ना। तो मैं उसका लिंक आपको भेजता हूँ, आप उसको क्लिक करके उसमें आ जाएं। ठीक है। सही है। वो सिर्फ इंटर्न्स के लिए जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो आपको ना पुश करेगा आपको अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। सही 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 सही। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू Burhan. Enjoy your rest of थैंक the यू। day. Tomorrow is also a holiday in your या। city. I also have a holiday, so it's a good time to get या। relaxed, and maybe आपका तो टाइम पढ़ने का है, तो आप हो सकता है पढ़ाई करेंगे, थोड़ी सी चीजें देखेंगे, रिवाइज करेंगे। अ, एग्जैक्टली। मैंने इस टाइम को यूज किया अपने कुलीग्स के साथ इंटरव्यू करने के लिए, ताकि वो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, मेनी अदर पीपल इंस्पिरेशन कर सकें। इट्स और अ गुड थैंक थिंग, यू इट्स अ मच गुड फॉर थिंग। कमिंग ऑन कैमरा विद अस। ओके। वेरी नाइस। ओके। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बाय। वालेकुम सलाम।